Start. So, children of class 7, we are starting with your English lesson 1. The name of the book, as you know, is New Pathways by Oxford. It's an interactive course in English. So, the first chapter is Wanderlust. Now, what is Wanderlust? It is the desire to go around the world. Now, look at the pictures. Which of these are connected to the word Wanderlust? Tick against the correct pictures. So as you can see that the third picture in which people are going into the space is the one in which people go in the space, and also in the trains and etc. people are going to go around the world, and on the railway stations and on the aircrafts, they go to the airports, so they go around the world. So give reasons for your answer. We can go to places by a train. We can go mountaineering with a chisel. So that's why I had corrected the chisel also. So you can tick mark on that also. So now we come to the lesson. And the name of the lesson is The One Who Survived Ada Blackjack. So let us read about an extraordinary woman's expedition and story of lone survival in an island in northern Siberia. So this is a story of an extraordinary woman who survived alone in an island. Lone means alone. Survival means she kept alive in an island in North Siberia. Siberia, as you know, is a place where it is snowing and it is covered with snow throughout the year. So now we'll start with this. The characters of this story: the expedition members included Frederick Maurer, E. Lorne Knight, both 28-year-old Americans, and Milton Gall, 20, another American, that is Milton Gall, who is 20 years old. And it also included Canadian Alan R. Crawford, he was also 20, and Stephenson, designated as the group's leader. The group leader कौन था? Stephenson. And last and not least, the expedition party had a young Inuit woman, Ada, about 23. What are Inuits? They are indigenous people of North Canada, Greenland, Alaska. So here the indigenous people means जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनको इनिट बोलते हैं. तो वहाँ पे एक लेडी थी आडा नाम की जो लगभग 23 ईयर्स ओल्ड थी, तो उसको भी इंक्लूड किया गया इस ग्रुप में. प्लीज़ टर्न द पेज and we come to the next page. Now this story is in the form of a picture. It's like your books, cartoon books in which the characters are illustrated. So here we have this picture. The year is 1898, and a man and a woman are seen in the picture. So the woman is telling her husband that a daughter is born to you, and he says we'll call her Ada. Now this girl has grown up a little bit, and the children are playing. They are asking, where is Ada? She seldom comes out to play. She must be washing or cooking or sewing. So she hardly used to play. All the time she was cooking, खाना बनाती थी या कपड़े धोती थी या कपड़े स्टिच करती थी. Now she has a grandmother, and she is talking to her. Now she is a grown-up girl now, and she is talking to her. Grandma, look at the fur coat that I have stitched. वो कह रही है देखिए ये फ़र का कोट. फ़र होता है ना जो वहाँ पे जानवर मिलते हैं, जैसे फॉक्स है या बियर है, उनका बड़ा थिक हेयर होते हैं बॉडी पे, तो उससे ये लोग अपने कपड़े भी बना लेते हैं. बिकॉज दे हैव टू समटाइम्स हंट देम एंड ईट देम. उससे जो स्किन होती है उनकी, उससे ये लोग अपने कपड़े बनाते हैं.
तो बता रही है, देखिए दादी जी, मैंने ये आप फर कोट बनाया है, स्टिच किया है. कम माई चाइल्ड अदा, यू आर अ गुड एंड टैलेंटेड चाइल्ड, यू विल मेक अ फाइन वुमन व्हेन यू ग्रो अप. कह रही तुम बहुत ही अच्छी और बहुत ही तुम टैलेंटेड बच्ची हो, और जब तुम बड़ी होगी तो बहुत ही एक अच्छी एक स्त्री बनोगी. अब आ गया है द ईयर 1921. Two of my children have died. I have lost my husband too. I shall not let my 5-year-old Bennett die. तो वो उसकी जो मदर हैं वो कह रही हैं कि ये उस बच्ची ही अब बड़ी हो गई है और उसकी मैरिज हो गई है और उसके 2 बच्चे मर चुके हैं, उसके पति भी मर चुके हैं, लेकिन अब वो कह रही है कि ये जो मेरा 5 साल का बच्चा है बेनेट, इसको मैं मरने नहीं दूँगी. But Ada, what will we do? We are poor, we have no money and little food. You can only sew. What job will you do? तो उन्होंने कहा हम तो गरीब हैं, पैसा है नहीं, खाना नहीं है, और तुम्हें सिर्फ स्टिचिंग आती है, तुम क्या काम करोगी? A few days later, कुछ समय बाद, hello, I am Vijanma Stephenson. I am an Arctic explorer. May I come in? तो ये कोई विजहनमा स्टीफेंसन है. तो ये आर्कटिक आप जानते हैं, जो हमारे देश के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो आर्कटिक है, जो साउथ में है वो एंटार्क्टिक है. तो ये आए हैं वहाँ पे और वो वहाँ पे जाके वहाँ खोजबीन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसको, आर्कटिक को. तो वो कह रहे हैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो वो कह रही है सिट बट कम इन प्लीज़. अब वो थोड़ा सा हिचक गई, फिर भी उनको उसने वेलकम किया. Ada, I am sending 4 men to explore the Arctic. They'll need a cook and a seamstress. I hear you are skilled at both cooking and sewing, so I have come to make you an offer. उसने कहा कि मैं 4 व्यक्तियों को आर्कटिक जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने, और उनको एक खाना बनाने वाली और एक कपड़े सिलने वाली चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों कामों में होशियार हैं. तो इसलिए जो है मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ. तो कह रही सर, आई एम अ पुअर वुमेन, व्हाट कैन आई डू? व्हाई? तो वो कह रहा है आई विश टू कॉलोनाइज रैंगल आइलैंड नॉर्थ ऑफ साइबेरिया. कह रहे हैं कि साइबेरिया जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पे एक आइलैंड है रैंगल आइलैंड. तो वहाँ पे वो कॉलोनाइज़ करना चाह रहे हैं उसको, वहाँ पे जाके वहाँ लोगों को बसाना चाह रहे हैं. बट माई सन, तो उसने कहा मेरा बेटा तो बीमार है. तो उसने कहा आई शुड गेट द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिम एंड आई विल पे यू टू. उसने कहा मैं इनकी सबसे अच्छी उसको इलाज कराऊंगा और उसके लिए पैसे भी दूंगा. आई शैल गो सर फॉर माई सन, ही मस्ट बी ट्रीटेड फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस. उसने कहा ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगी, मेरे बेटे को टीबी है. Great. You'll set out on the 21st September to build new lives on icy Wrangel Island. You will be accompanying 4 hardened adventurers, 3 Americans called Lorne Knight, Milton Gale, Fred Maurer and a Canadian called Alan Crawford. उसने कहा ठीक है, आप 21 सितंबर को जाएंगी, जो बहुत ही बर्फीला एक आइलैंड है, रैंगल आइलैंड, और आपके साथ 4 बहुत ही हार्डन, मतलब बहुत ही पके हुए, मीन्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स हैं, जो बाहर घूमते, कभी पहाड़ कभी जंगलों में घूमने वाले एडवेंचरर्स हैं, उनके साथ आप जाएंगी, जिनमें 3 अमेरिकन्स हैं, जिनको लॉर्ड नाइट, मिल्टन गैल, फ्रेड मॉरर, और एक कैनेडियन है एलन क्रॉफोर्ड. तो आई विल बी हैप्पी टू गो ऑन दिस एक्सपीडिशन. आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सन. So now when she has reached that place from where she has to begin, तो वो बोल रहे हैं this frail woman, ये weak सी औरत, hello my heroes, this is Ada, she'll accompany you on your expedition. She'll not survive in the cold, Stephenson, ये तो सर्दी में बच ही नहीं पाएगी, मर जाएगी. तो I'll learn how to, मैं सीख लूँगी जीना. तो that's the spirit, यही तो है उत्साह. I'm sure the island is well stocked with wildlife. I have put food for 6 months in the ship
I will send a supply ship in summer. Meanwhile, you will have to fend for yourself. Good luck, my friends. अब शिप जा रही है तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आशा है कि ये जो पूरा आपका आइलैंड है, द्वीप है, इसमें बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, वाइल्ड लाइफ। और मैंने 6 महीने का खाना भी रख दिया है शिप में, और एक सप्लाई भेजूँगा समर में, गर्मियों में। मीनवाइल जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उसमें शिप चल सकती हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो शिप चल ही नहीं सकती, तो समर में ही वो भेज सकता था उनको 6 महीने के बाद। और इसके अतिरिक्त इस बीच आपको फेंड फॉर योर सेल्फ मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड लक माई फ्रेंड्स। Oh, I miss my son so, but if I refuse to go with them, who will cook and stew for them? Also, Bennett needs round-the-clock medical attention. I will keep my word. तो वो सोच रही है कि मेरे को अपने बेटे की बहुत याद आएगी, लेकिन अगर मैं इनके साथ जाने से मना कर देती हूँ तो कौन इनका खाना बनाएगा, कौन इनके कपड़े सिलेगा। और जो बेटा है मेरा बेनेट, उसको तो 24 घंटे राउंड द क्लॉक मीन्स 24 घंटे उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो इसलिए मैं अपने जो मैंने प्रॉमिस की है वो तो मुझे पूरी करनी है। This island is very big. They said it would be a small one. It won't be fair to cry. I have to sew clothes and shoes for the men as soon as possible. अब वो ये भी सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़ा आइलैंड है, उन्होंने तो कहा था कि ये छोटा सा होगा, लेकिन रोना तो अब सही नहीं रहेगा, सही नहीं है। मैं जो है इनके लिए कपड़े सिलती हूँ और शूज़ सिलती हूँ इन लोगों के लिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वो बर्फीले प्रदेश में ही रहती थी तो उसको वहाँ के बर्फ़ के जूते वगैरह सिलने आते होंगे, कपड़े भी सिलने आते थे, फर कोट्स वगैरह। वी हैव मेड इट, हुर्रा, लेट्स पिच आवर टेंट्स। हमने कहा आ गए हम, वी हैव मेड इट, हम इस आइलैंड पे आ गए हैं, तो अब हम अपना टेंट जो है वो लगाते हैं। वी मस्ट स्टार्ट हंटिंग फॉर फूड फ्रॉम टुमारो। कल से हम अपना शिकार करना शुरू कर देंगे। खाना तो था उनके पास, फिर भी उनको फ्रेश मीट वगैरह चाहिए था। अब स्प्रिंग आ गया 1922 का। वी हैव किल्ड मोर देन 30 सील्स, 10 पोलर बियर्स, गीज एंड डक्स। उन्होंने क्या, 3 तो सील्स होती हैं जो वहाँ रहती हैं आर्कटिक में, पोलर बियर्स भी मार लिए थे 10, और गीज होती हैं जो ये बतखें और बड़ी वाली बतखें, और डक्स जो छोटी बतखें होती हैं। मीट इज़ इन प्लेंटी,